Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 44th lecture of this series of CPC, and we are continuing with the topic order 8 rule 6, a set of claim. In the previous lecture we had look upon the rule 6. Now in this we would start with the illustrations of rule 6. अब इसमें illustrations में first of all we look upon the easy ones. So illustration number D निकालो आप पहले. So read illustration D. A sues B on a bill of exchange for rupees 500. अब ओरिजिनल सूट कितना है? 500 रुपये का. B holds a judgment against A. B holds a judgment against A. मतलब B के पास भी A के खिलाफ एक क्लेम है. A sues B on a bill of exchange of rupees 500. B holds a judgment against A for rupees 1000. Now these are two claims, both are ascertained. A का क्लेम 500 का और B का 1000 का है. तो यहाँ पर बड़ा अमाउंट डिफेंडेंट के पास है, तो इधर डिक्री डिफेंडेंट के फेवर में जाएगी. बट स्टिल कैन बी क्लेम दैट सेट ऑफ रुपीज 1000? आंसर इज यस, because both of them are ascertained amount. A sues B on a bill of exchange for rupees 500. B holds a judgment against A for rupees 1000. The two claims being both definite pecuniary demands may be set off, provided कोर्ट का jurisdiction 1000 का था. अगर उस कोर्ट का jurisdiction 1000 से कम था फिर आप 1000 रुपये का क्लेम नहीं कर सकते. अब इस इलस्ट्रेशन से क्या बात क्लियर होती है? ये बात क्लियर होती है कि जो सेट ऑफ क्लेम है वो ओरिजिनल अमाउंट से भी ज़्यादा हो सकता है. सेट ऑफ क्लेम ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा भी हो सकता है. अब इसमें ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 500. तो सेट ऑफ क्लेम है 1000. So that kind of situation is also possible. Then you see illustration number C. A sues B on a bill of exchange. B alleges that A has wrongfully neglected to insure B's goods and is liable to him in compensation which he claims to set off. अब बताइए कर सकता है क्या? A sues B on a bill of exchange. अब A का अमाउंट तो फिक्स्ड है एज पर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन B इज क्लेमिंग कॉम्पनसेशन डैमेजेस. क्या ये पॉसिबल है? B का क्लेम असर्टेन्ड अमाउंट होना चाहिए, बट हियर इट इज नॉट असर्टेन्ड अमाउंट. ही इज क्लेमिंग डैमेजेस एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल. A sues B on a bill of exchange. B alleges that A has wrongfully neglected to insure B's goods and is liable to him in compensation which he claims to set off. अब B चाहता है कि मैं डैमेजेस क्लेम करूं उसके खिलाफ इन सेट ऑफ. सो B इज द डिफेंडेंट, तो उसका क्लेम शुड बी ऑलवेज एन ascertained amount, but here he is claiming damages and therefore they are writing the amount not being ascertained cannot be set off. ठीक, it's quite easy. Now illustration number E. A sues B for compensation on account of trespass. A sues B for compensation on account of trespass. तो ये टॉर्ट में डैमेजेस मांग रहा है. B hold a promissory note of for rupees 1000 from A and claims to set off that amount against any sum that A may recover in the suit. अब बताइए हो सकता है कि नहीं? अब इसमें A ने डैमेजेस मांगा B के खिलाफ और B का एक promissory note है फिक्स्ड, that is fixed है 1000 rupees. So that can be done. So B may do so for as soon as A recovers both sums as definite pecuniary demands. So B may do so for as soon as A recovers both sums are definite pecuniary demands. अब जैसे ही A को डिक्री मिल गई then that will be an amount, और B के पास ऑलरेडी 1000 रुपये का क्लेम है, तो that can be adjusted. इधर A तो डैमेजेस मांग रहा है, B के पास फिक्स अमाउंट है, promissory note है 1000 रुपीज का,
जैसी डिग्री मिलेगी ए को तो वो भी फिक्स अमाउंट हो जाएगी, बी का ऑलरेडी फिक्स है, तो दैट कैन बी डन। तो बोथ अमाउंट्स कैन बी एडजस्टेड। ठीक, अब इन सारे इलिस्ट्रेशंस में वी आर प्रिज्यूमिंग दैट दे बोथ आर फिलिंग द सेम कैरेक्टर। इन सारे इलिस्ट्रेशंस में वी आर प्रिज्यूमिंग दे ऑल आर फिलिंग द सेम कैरेक्टर, तभी तो अलाउड होगा। तो जितने भी हमने पढ़े हैं इलिस्ट्रेशंस, इन सब में वी आर प्रिज्यूमिंग दैट दे आर फिलिंग द सेम कैरेक्टर। अब नेक्स्ट illustration F. Illustration F. A and B sue C for ₹1000. Now illustration F में they are saying that A and B sue C for ₹1000. A and B sue C for ₹1000. अब देखो यहाँ पर A और B का जॉइंट पेमेंट है C के खिलाफ, तो अब यहाँ पर C कौन सा अमाउंट एडजस्ट करवा सकता है? जो उसका क्लेम, सी का क्लेम इन दोनों पर जॉइंट हो। अगर सी का क्लेम सिर्फ ए पर है या सिर्फ बी पर है, दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड। ए एंड बी मेकिंग अ जॉइंट क्लेम अगेंस्ट सी, तो सी कैन ओनली गेट सेट ऑफ ओनली दैट क्लेम which he has jointly against A and B. The A and B sues C for ₹1000. C cannot set off any debt due alone on A और B. मान लो C का जो कॉज ऑफ एक्शन है सिर्फ A के खिलाफ है, तो उसका यहाँ सेट ऑफ नहीं हो सकता। जब C का एक कॉज ऑफ एक्शन फॉर द मनी अलोन B के खिलाफ है, तो उसका यहाँ पर सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो C का जो अगेंस्ट, C का एक कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट फॉर द मनी should be for the A and B against the A and B both. So party should be the same, क्योंकि जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट में, that is legally recoverable from him by him from the plaintiff, legally recoverable by him from the plaintiff। अब यहाँ पर it is not plaintiff, it is plaintiffs, and therefore the amount should be legally recoverable by C from the plaintiffs। ठीक, the amount should be legally recoverable by C from the plaintiff A and B। So if A and B are jointly claiming an amount, then the defendant also should have a claim jointly against the plaintiffs। ठीक, तो इसको आप लिख लो, राइट डाउन। In order 8 rule 6, in order 8 rule 6, the words legally recoverable by him from the plaintiff also include the plural, that is the word him may be referred to as them। The word him may be referred to as them, तो दोनों सिचुएशन आएगा। The word him may be referred to them and plaintiff may be referred to as plaintiffs। The word him may be referred to as them मतलब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स। हिम मतलब क्या? डिफेंडेंट। लीगली रिकवरेबल बाय हिम, हिम का मतलब क्या हुआ? डिफेंडेंट। तो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। एंड प्लेंटिफ इंक्लूड्स प्लेंटिफ्स। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में ए और बी ने मिलकर सूट किया था सी के ऊपर फॉर क्लेमिंग ₹1000। अब सी हैज गॉट claim only against A, so for this C is not having the claim legally recoverable against the plaintiffs jointly, and therefore that cannot be set off। But if he has a claim against both of them jointly, then that can be recovered। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका उल्टा है, रीड। जी, A sues B and C for ₹1000। अब यहाँ पर डिफेंडेंट हो गए डिफेंडेंट्स, तो अभी यहाँ पे हमने देखा था हिम का देम, वो आ जाएगा यहाँ पर। A sues B and C for ₹1000
अब यहाँ पर सिर्फ बी का अकेला क्लेम है ए के ऊपर, तो दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ। अगर सी का अकेला क्लेम है ए के ऊपर, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ। लेकिन अगर बी और सी का जॉइंट क्लेम है ए के ऊपर, दैट कैन बी सेट ऑफ। तो बी कैन नॉट सेट ऑफ अ डेब्ट ड्यू टू हिम अलोन बाई ए। वाई? बिकॉज दे हैव said that legally recoverable by them, we will read like this, legally recoverable by them, the two defendants against the plaintiff। तो जब मल्टीपल डिफेंडेंट्स हो तो them will come, और अगर मल्टीपल प्लेंटिफ्स हो तो वर्ड plaintiffs will come। तो आंसर अगर लिखोगे आप तो ये वर्ड जरूर लिखिएगा अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए। यूजिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द बेयर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसके बाद देखो लास्ट इलस्ट्रेशन एच। ए ओज द पार्टनरशिप फर्म ऑफ बी एंड सी ₹1000। मतलब बी और सी का पार्टनरशिप फर्म है और उनका क्लेम है ए के ऊपर ₹1000 का। बी एंड सी आर हैविंग द पार्टनरशिप फर्म एंड दे आर हैविंग अ क्लेम अगेंस्ट ए फॉर ₹1000। अब बी डाइज, अब इस पार्टनरशिप फर्म में बी मर गया। बी मर गया तो क्या होगा, ये जो क्लेम था बी और सी का जॉइंटली, ये सी का इंडिविजुअल क्लेम नहीं हो जाएगा। इफ द बी डाइज, इफ द अदर पार्टनर डाइज, two partners are there and one partner dies, if you have read the partnership, then in that the remaining partners after death of one will get entire claim, and therefore now this claim becomes what? C versus A। अब यहाँ पर ये पर्सनल कैपेसिटी में क्लेम हो जाएगा। जब तक बी जिंदा था तब तक इट वाज पार्टनरशिप का क्लेम, पार्टनरशिप कैपेसिटी में क्लेम। जैसे ही बी मर गया, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। बी के मरने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा कि नहीं? हो जाएगा। एंड देयरफॉर सी कैन क्लेम द इंडिविजुअल क्लेम ऑफ ₹1000। बी डाइज लिविंग सी सर्वाइविंग, ए सूज सी फॉर डेब्ट ऑफ ₹1500 ड्यू। अब ए ने सी पर सूट किया ₹1500 के लिए। द क्वेश्चन इज, क्या सी इस सूट में ₹1000 का क्लेम कर सकता है? अब पहले अगर बी नहीं मरा होता, देन दैट वुड हैव बीन अ पार्टनरशिप का क्लेम, तो वहां पे ही कुड नॉट मेक द सेट ऑफ। So there the claim was A, B or C का combined. But here now after the death of the B, C is the alone and debt becomes the individual claim of the C। तो अब जो स्थिति है ये है कि C का इंडिविजुअल क्लेम A के खिलाफ है ऑफ ₹1000 और A ने C के ऊपर ₹1500 का क्लेम किया। That can be done। A sues C for debt of ₹1500 due in his separate character, different character। अब C may set off the debt of ₹1000। Why? Because after the death of B, the partnership has dissolved। After the death of B, the partnership has dissolved and the claim of 1000, लिख लो इसको, because after the death of B, the partnership has dissolved and the claim of 1000 becomes the individual claim of C alone, and therefore the set off can claim by A। अब दोनों की कैपेसिटी क्या होगी? क्रेडिटर एंड डेब्टर। जब ए ने जो क्लेम किया दैट इज क्रेडिटर एंड डेब्टर कैपेसिटी, एंड सी ने जो क्लेम किया दैट इज ऑल्सो क्रेडिटर एंड डेब्टर। तो मरने से पहले, बिफोर द डेथ ऑफ बी, देयर कैरेक्टर आर डिफरेंट, तब कैरेक्टर अलग था। बट आफ्टर डेथ ऑफ बी द कैरेक्टर इज सेम नाउ। Now come to illustration A। A bequeaths। A bequeaths means making a will। A bequeaths ₹2000 to B and appoints C his executor। Executor means what?
मतलब किसी के मरने पर उसके वसीयत का जो एग्जीक्यूशन करेगा, द पर्सन हु एग्जीक्यूट द विल इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। जो वसीयत को एग्जीक्यूट करेगा दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। A bequeaths rupees 2000 to B and appoints C his executor and residuary legatee। रेसिडरी लेगाटी का मतलब ए बी को 2000 रुपये देने के बाद जो बच जाएगी प्रॉपर्टी ए की, दैट विल बी टेकन बाय सी। ए हैज मेड एन वसीयत विल इन फेवर ऑफ बी। ए मेड अ विल इन फेवर ऑफ बी। अब कितने का विल किया? 2000 रुपीज। अब इसमें सी को एग्जीक्यूटर बनाया प्लस द रेसिडरी लेगैटी। दैट इज ए का कहना है कि मेरे मरने पर सी मेरी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन करेगा, विल को एग्जीक्यूट कराएगा और बी को 2000 रुपये पे करेगा, और जो बच गया दैट वुड बी होल्ड बाय सी। तो सी इज ऑल्सो रेसिडरी लेगैटी। रेसिडरी मीन्स आफ्टर गिविंग द रुपीज वॉट एवर रिमेन्स दैट विल बी टेकन बाय हिम। तो उसने अपनी वसीयत में 2 लोगों को प्रॉपर्टी दी है, एक तो बी को दिया 2000 रुपये और जो बच गया है वो सी को मिला। बी डाइज एंड डी टेक्स आउट एडमिनिस्ट्रेशन टू बीज इफेक्ट्स। अब देखो हुआ क्या, ए डाइज, उसके बाद बी ऑल्सो डाइज। ए मर गया और उसके बाद बी भी मर गया। अब बी को 2000 रुपये अभी मिले नहीं है, ही हैज नॉट पेड 2000 रुपीज बाई सी। He has not paid rupees 2000 by C, and in the meantime B dies. Then they are saying that D takes out administration to B's effects. अब D जो है B का कोई लीगल हेयर होगा, will be taking out the administration of B's property. Administration of his property means B's property means whatever liabilities are there on the part of B, that will be paid from the property of B to the persons, and whatever claims B had that will be claimed by B। तो B जितने भी क्लेम्स हैं D जो जितने भी क्लेम्स हैं B के वो वसूलेगा मतलब टेक इट फ्रॉम द अदर्स, एंड whatever the liability B had that will also be paid by D out of the property of B for Bombay। And then C pays rupees 1000 as security for D। अब देखो जब आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो कोर्ट में आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक सिक्योरिटी चाहिए। When the D becomes the administrator for B for Bombay, then D will have to deposit some security amount in the court, and he has to get some security। So as matter of fact, as guarantor, अब as matter of fact C को ही D ने गारंटर बना लिया। अब D के पास पैसे नहीं होंगे शायद, अब C ने D के बिहाफ पर 1000 रुपये कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिए। अब 1000 रुपये कोर्ट में डिपॉजिट किस लिए करवाए? एज ए गारंटर टू D। So it will be deemed as C has given a loan to D of rupees 1000। It will be deemed that C has given a loan to D of rupees 1000। Then they are saying that then D sues C for the legacy। देखो अब क्या हुआ, D ने C पर सूट किया फॉर व्हाट अमाउंट? फॉर द अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज। तो D फाइल्स सूट अगेंस्ट C फॉर 2000 रुपीज। अब हेयर C चाहता है कि जो मैंने 1000 रुपये गारंटर के रूप में दिया था, इट वांट्स टू सेट ऑफ दैट अमाउंट। C cannot set off debt of rupees 1000 against the legacy, for neither C nor D fills the same character with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of rupees 1000। अब देखो फिर से देखो इस इलस्ट्रेशन को। A bequeaths rupees 2000 to B and appoints C his executor and residuary legatee।
B dies, and D takes out administration of B's effects. C pays rupees 1000 as COT for D. Then D sues C for legacy. C cannot set off the debt of rupees 1000 against legacy, for neither C nor D fills the same character with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of rupees 1000. Now what A has done is, A in his lifetime made a will in favor of B for rupees 2000, and A appointed C as executor, means के A के मरने पर मेरी प्रॉपर्टी पर, A की प्रॉपर्टी पर, मेरे मरने पर मेरी प्रॉपर्टी पर जिसका क्लेम है C विल सेटिस्फाई, और जो प्रॉपर्टी बच गई C इज द रेसिडरी लेगेटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी. C is the residuary legatee of entire property, whatever remains. Now A dies and B has not taken rupees 2000, and B also dies. Now D applies to the court to administrate the property of B for Bombay. हो सकता है B का कोई रिश्तेदार हो, उसने कोर्ट में अप्लाई किया है कि मैं B की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना चाहता हूँ. मतलब फॉर एग्जांपल वो उसका लीगल एयर है मान लो, तो उसकी प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर बनता है, उसका भी शेयर बनता है डी का, और मैं उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करूंगा, मतलब जिसका बी की प्रॉपर्टी में क्लेम है उसको सेटिस्फाई करूंगा, और बी का अगर किसी के ऊपर क्लेम है देन दैट क्लेम आई विल टेक फ्रॉम दैट अदर पर्सन. अब डी अप्लाइज टू द कोर्ट, तो ऑब्वियसली व्हेन ही अप्लाइज टू द कोर्ट देयर इज नीड ऑफ गारंटर, so C as a matter of fact becomes the guarantor of D and take the 1000 rupees as the guarantor. So this amount will be deemed as if C has given a loan to D for 1000 rupees. So C becomes the creditor and D becomes the debtor for this 1000 rupees. C becomes the creditor and D becomes the debtor for 1000 rupees. तो इनकी लीगल कैपेसिटी क्या होगी, लीगल कैरेक्टर क्या होगा इनका सी और डी वाले केस में, क्रेडिटर एंड डेब्टर का होगा. अब उधर डी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट सी फॉर 2000 रुपीज. अब डी किस कैपेसिटी में फाइल कर रहा है, नॉट एज अ क्रेडिटर, ही इज फाइलिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. एंड हु इज सी, सी इज एन एग्जीक्यूटर. तो यहाँ पर डी की लीगल कैपेसिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और सी का लीगल कैपेसिटी एज अ एग्जीक्यूटर ऑफ एज प्रॉपर्टी. और जबकि सी और डी का जो 1000 रुपए के लिए सी इज द क्रेडिटर एंड डी इज द डेब्टर, तो इज द लीगल कैपेसिटी इज द सेम? नो. So C cannot set off the debt of rupees 1000 against the legacy, for neither C nor D fills the same character with respect to legacy as they fill with respect to the payment of rupees 1000. तो legacy के लिए क्या लीगल कैपेसिटी है, legacy के लिए D की लीगल कैपेसिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और C की लीगल कैपेसिटी एज एन एग्जीक्यूटर. और 1000 रुपीज के लिए क्या लीगल कैपेसिटी है, डेब्टर एंड क्रेडिटर. तो इसको लिख लो आप, राइट डाउन. फॉर द लीगेसी दैट इज 2000 रुपीज, डी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड सी इज एन एग्जीक्यूटर. Whereas for 1000 rupees C is creditor and D is debtor, and therefore the legal capacity, that is the legal character, is the different. They are not fit in the same character. So the character is different and hence set off cannot be claimed. ठीक, तो ढंग से करिएगा इस तरीके के इलस्ट्रेशंस को. यूपी में इस तरीके के इलस्ट्रेशंस को मेंस में पूछ लेते. अब इसमें पूरा ये इन्होंने नहीं लिखा है, दे आर सेइंग दे आर नॉट फिलिंग द सेम कैरेक्टर, बट व्हाट डिफरेंट कैरेक्टर दे आर फिलिंग. लेगेसी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा एग्जीक्यूटर है, दैट इज फॉर 2000 रुपीज. और 1000 रुपीज के लिए वन इज क्रेडिटर एंड अदर इज डेब्टर. ठीक, एंड देयरफॉर दैट कैन नॉट बी, डेब्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ. ठीक, अब नेक्स्ट
कम टू इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक पॉइंट में ये आपको बता ही चुका हूँ कि सेट ऑफ क्लेम का कॉज ऑफ एक्शन अगर सेम डे पर अराइज हुआ जिस दिन सूट फाइल हुआ था तो क्या होगा। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर पहले अगर अराइज हुआ है तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, तो उस दिन सेम डेट पर अराइज हुआ या बाद में अराइज हुआ तो आप अलग सूट करोगे, यू विल नॉट फाइल अ सेट ऑफ क्लेम। तो सेम डे या बाद में यू कैन नॉट क्लेम द सेट ऑफ। दूसरी सिचुएशन क्या है कि बी का जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो खत्म हो चुका है, बी का प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो चुका है, बी इज द डिफेंडेंट एंड देयर आफ्टर ही क्लेम्स द सेट ऑफ, तो विल ही गेट द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेशन। तो इसका आंसर है यस, आंसर इज यस। ये लिमिटेशन एक्ट का सवाल है, सेक्शन 3। वाई ही विल गेट बेनिफिट, बिकॉज इट इज रिलेटिंग बैक। मान लो ए इसका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ राइज हुआ और इसका ये प्रिस्क्राइब पीरियड है इधर तक, और बी का कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर अराइज हुआ एंड दिस इज द प्रिस्क्राइब पीरियड। अब ए ने इस डेट पर सूट कर दिया। अब देयर आफ्टर इन रिटन स्टेटमेंट बी क्लेम्स सेट ऑफ। अब ध्यान रखिएगा बी ने इस डेट पर क्लेम किया सेट ऑफ जिस दिन उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो चुका उसके बाद। अब विल बी बी अलाउड टू सेट ऑफ। अब सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में इट इज वेरी क्लियर दैट दिस विल रिलेट बैक टू द ओरिजिनल डेट एंड देयरफॉर दिस विल बी अलाउड। क्योंकि जो सेट ऑफ क्लेम आपने किया वो उस दिन तो नहीं माना जाता जब, बल्कि ओरिजिनल डेट पर माना जाता है। जिस दिन क्लेम किया उस दिन नहीं माना जाता बल्कि ओरिजिनल डेट पर माना जाता है। देयरफॉर द सेट ऑफ क्लेम विल बी अलाउड। लेकिन अगर काउंटर क्लेम होता तो काउंटर क्लेम देन इट विल नॉट बी अलाउड। Why? Because the counterclaim does not relate back. The counterclaim is deemed to be filed on the date when it is actually filed. Okay? But that is the case of Limitation Act, question of Limitation Act. But for here, the answer of this question is yes. In case of set off, not of for counterclaim. In case of set off, because set off claim is related back to the original date of suit when the original suit was filed. ठीक, तो इस इलस्ट्रेशन में ए ने अपने प्रिस्क्राइब पीरियड में सूट किया, he has filed a suit within his prescribed period. अब बी ने रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम किया, but as a matter of fact when he claims the set off in the WS the prescribed period of B is already over. B का prescribed period is up to here और उसने WS में क्लेम किया तब वो यहाँ पर क्लेम किया, so that is already over. तब उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो चुका है और वो अगर अलग से सूट करता then in that situation suit would not have been allowed. अगर बी अपने सेट ऑफ क्लेम के लिए अलग से सूट करता then that would not be allowed. But here since he is claiming set off, so set off claim, since set off claim is said to have been done when the original suit was filed and therefore it is within the prescribed period, so it is an advantage. लेकिन अगर ये काउंटर क्लेम होता then it will not be allowed because the counter claim is said to have been filed on the date when the counter claim is filed. ठीक, तो set of claim पीछे relate back करता है, so it is said to be legally recoverable because the limitation act will prevail. So the limitation act says that it will relate back to the original date and therefore the limitation act will prevail and the set of claim will be allowed. अब इसमें और ज़्यादा पढ़ना है तो लिमिटेशन में पढ़ेंगे, लिमिटेशन एक्ट में, तब और समझ में आ जाएगा, बट वैसे भी क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ के लिए. नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर बी. लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर बी. Read illustration B. A dies intestate and in debt to B. Means A is liable to pay some amount to B. C takes out administration of to A's effects. तो A के मरने पर C is an administrator.
and B buys part of the effects from C. अब जब C ने एडमिनिस्ट्रेशन किया तो B इज द परचेजर। अब देखो होगा क्या, आई टेल यू, इफ समवन डाइज एंड ही हैज लेफ्ट बिहाइंड सम क्लेम्स, मान लो ये मर गया, अब उसके कुछ क्रेडिटर थे, अब उनके पैसे तो वापस करोगे आप। सो सी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, सी इज हिज एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस एग्जाम्पल। सी इधर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा तो सी ए की कुछ प्रॉपर्टी बेचेगा जिससे जो क्रेडिटर्स थे उनके पैसे वापस किए जा सके। मान लो ए ने मरने के पहले 10 लाख रुपए का लोन ले रखा था लोगों से, तो अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर सी है ए की प्रॉपर्टी बेचेगा तो इतनी बेचेगा जिसमें कि 10 लाख रुपए क्लियर हो जाए। So that is the part of the property that he sell some property of A. When he sells the property, someone has to purchase or not. When she sells some property, there should be some purchaser, no? Purchaser कोई तो बेचेगा। There is a purchaser. The property, जब property बेचा तो as a matter of fact इस केस में B ने इसकी प्रॉपर्टी खरीद ली, तो B is what? B is purchaser and C is the seller. ठीक, so C is liable to give the property to B and B is liable to give what? The purchase amount. ठीक, अब इधर A is liable to pay an amount to B. अब A मर गया, then who is liable to pay this amount? C. अब C is liable to pay the amount to B और उधर B is liable to pay the amount to C. B is liable to pay what amount? Purchase amount. And C is liable to pay the debt amount. Right. A dies intestate and in debt of B, C takes out administration to B A's effect and B buys part of the effects from C in a suit for the purchase money by C against B. now देखो हुआ क्या, C ने B पर सूट कर दिया for what? For the purchase money, ये वाला जो अमाउंट था उसके लिए उसने B पर सूट कर दिया। अब in a suit for the purchase money by C against B, the latter cannot set off the debt against the price. For C fills two different characters, one as the vendor to B, in which he sues B, and the other as representative to A. अब यहाँ पर B चाहता है कि वो सेट ऑफ क्लेम कर ले किस अमाउंट का, ये वाले अमाउंट का। B wants to claim a set off of that amount against C. Now it will be allowed if they fill the same character. अब देखो इस सूट में C is what? C is seller and what is B? B is the purchaser. और इस अमाउंट के लिए what is B? What is B? B is creditor and C is debtor, or you can say C is the administrator, or you can say debtor also, because C is in the shoes of A, no? C is in the shoes of A, तो C को आप डेप्टर भी मान सकते हो और C को आप एडमिनिस्ट्रेटर भी मान सकते हो। C is the administrator, debtor and B is the creditor। और ऊपर वाले में B is the purchaser and C is what? एडमिनिस्ट्रेटर या सेलर। तो एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते ही बेच रहा है, सो ही इज एडमिनिस्ट्रेटर सेलर। अब यहाँ पर जो लीगल कैपेसिटी है इनकी डिफरेंट है, so since the legal capacity being different, set off cannot be allowed। तो इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर, write down in the suit by C against B, in the suit by C against B for the purchase amount, C hold the legal capacity of administrator, seller या फिर एडमिनिस्ट्रेटर वेंडर भी बोल सकते हो आप उसको। She holds the capacity of administrator, seller और administrator, vendor।
and B's capacity is that of a vendee or a purchaser, and B's capacity is that of vendee or a purchaser, and in the set of claim B's capacity is as a creditor and C as a administrator debtor, and therefore legal capacity is different. The legal capacities are different. Thus, the parties fill the different character in the two claims. Parties fill the different character. तो दो हैं इनकी लीगल कैपेसिटी अलग अलग. So the parties fill the different character in the two claims, and therefore set off will not be allowed. ठीक. तो एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा पूरा समझाकर. उसमें ये मत लिख देना कि इलस्ट्रेशन में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ. तो डोंट डू दैट थिंग, क्योंकि एग्जाम में कई बार इलस्ट्रेशन से सवाल पूछ लेते हैं तो आप लिख देते दैट इन सेक्शन so and so in subject that in CPC in order rule इतना illustration given is so and so. तो इस तरीके से मत लिखना, क्योंकि आपको इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए कि जिससे एग्जामिनर को लगे इसको इलस्ट्रेशन नहीं पता है फिर भी ये समझता है क्वेश्चन को और इसका क्या आंसर होगा. तो इस तरीके से मत लिखो कि ये इस सब्जेक्ट के इस सेक्शन में ये इलस्ट्रेशन है, सो आई एम डिसाइडिंग दैट. यू टेक इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 और उसके एलिमेंट्स के बेसिस पर आप डिसाइड करो. लास्ट में अगर चाहो तो आप लिख दो इलस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, दैट डज नॉट मैटर. तो आप सेक्शन के टर्म्स लिखो और उसके बेसिस पर डिसाइड करो. तो आप पूरा लिखोगे इसमें दैट अमाउंट इज अ सर्टेन अमाउंट, सो दैट element of order 8 rule 6 is fulfilled, and then you say that the original suit is the money claim and that is a certain amount. फिर आप legally recoverable वाला लिखोगे that the amount is legally recoverable. और फिर बाद में आप लिखोगे that whether they fill the same character or not. और फिर उसके बाद सेम कैरेक्टर पर आप ये सब लिखोगे. ठीक. तो बेसिक एलिमेंट्स थोड़ा बहुत आप बताकर फिर आप लास्ट में लिखोगे द ओनली एलिमेंट टू बी एग्जामिन्ड वेदर दे फिल द सेम कैरेक्टर, एंड देन यू विल एग्जामिन द सेम कैरेक्टर एंड यू विल से दैट they do not fill the same character. So that is all about this topic. ठीक. तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज लीगल सेट ऑफ. Now we have to discuss that is equitable set off. अब देखो ऑर्डर 8 रूल 6 is talking about the set off. Order 8 rule 6 is talking about set off which is called legal set off. अब equitable set off के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है. equitable set off का जो कॉन्सेप्ट है that is taken from the British equity courts. Equitable set off का कॉन्सेप्ट has been taken from the British equity courts. On the basis of the equity that set off is allowed. लेकिन एक थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिलेगा इक्विटेबल सेट ऑफ का इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3. एक बार आप ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 निकालिएगा. अब डायरेक्टली तो उन्होंने इसमें नहीं कहा है बट देयर आर सम हिंट्स इन देयर. अब इसमें बेसिक तो हमारा मतलब है सब रूल 3 से बट एक बार पूरा पढ़ लेते हैं. वेयर the defendant has been allowed a set off or counterclaim against the claim of the plaintiff, the decree shall state what amount is due to the plaintiff and what amount is due to the defendant, and shall be for the recovery of any sum which appears to be due to either party. So that I have already told you. इस सेट ऑफ या काउंटर क्लेम में अगर अमाउंट है किसको कितना अमाउंट मिला वो लिखा जाएगा और फिर सेट ऑफ करने के बाद जिसके फेवर में अमाउंट जाएगा वो लिखा जाएगा. जैसे वो एग्जांपल दिया था 10 लाख और 3 लाख, तो सेट ऑफ करने के बाद 7 लाख बचे.
So that we have discussed already. Any decree passed in a suit in which a set off or counterclaim is claimed shall be subject to the same provisions in respect of appeal to which it would have been subject if no set off or counterclaim had been claimed. मीन्स डिक्री के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं. अब मान लो you have claimed a damages of 10 lakh rupees and the court awards you the damages of only of 5 lakh rupees और अपोजिट पार्टी ने 3 लाख का फिक्स अमाउंट क्लेम कर रखा है, तो उसको सेट ऑफ करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 2 लाख. लेकिन आप जो अपील करोगे, द प्लेंटिफ मेक्स अपील, तो वो 2 लाख के लिए अपील नहीं कर रहा है. ही विल मेक एन अपील कि मैंने 10 लाख क्लेम किया था और मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए अवार्ड हुए. अब सेट ऑफ एक अलग चीज, वो ठीक है, बट आई हैव क्लेम्ड इन द सूट 10 lakh and I got only 5 lakh rupees and I am the main party and I want the decree to be amount to be enhanced to 10 lakh, and for that he make an appeal, and when he makes the appeal, either plaintiff make the appeal or the defendant makes the appeal, he will make an appeal normally of your amount for consideration. अदरवाइज क्या करोगे आप? मान लो 5 - 3 2 लाख रुपए की डिक्री आपको मिली, तो आप 2 लाख के लिए अपील करोगे कि 2 लाख कम है, तो ऐसे नहीं होगा. आपने ओरिजिनल सूट जो फाइल किया था, यू क्लेम 10 lakh एंड यू हैड गिवन ओनली 5 lakh. अब ये 2 लाख एडजस्टमेंट के बाद हुआ. अब फाइनल डिक्री चलो 2 लाख की मिली, 5 - 3 2 lakh, लेकिन ओरिजिनल आपके फेवर में जो ऑर्डर आया वो कितने का आया? दैट इज ऑफ 5 lakh. So you have to make an appeal with respect to 5 lakh. अब उसी तरीके से जिसने सेट ऑफ क्लेम किया था, उसने मान लो 3 लाख रुपीज मांगा था एंड ही ओनली गेट 1 lakh. तो ही विल मेक एन अपील कि मैंने 3 लाख का क्लेम किया था एंड आई गॉट ओनली 1, सो आई एम एग्रीव्ड, एंड ही मेक एन अपील अगेंस्ट दैट. So when you make an appeal, you don't take into consideration that there is some amount which is deducted because of set off. So you make an appeal with respect to your original amount that you had claimed. And the third one is relevant here. The provisions of this rule shall apply whether the set off is admissible under Rule 6 of Order 8 or otherwise. So the provisions of this rule, whether the set off is admissible under Rule 6 Order 8 और अदरवाइज. अब देखो अदरवाइज का क्या मतलब होगा. अब ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले प्रोविजंस ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर सेट ऑफ हैं, उसमें लगेगा, और फिर कह रहे हैं और अदरवाइज. तो मीन्स द वर्ड अदरवाइज रिटन हियर, दैट मीन्स दैट देयर इज अनदर काइंड ऑफ सेट ऑफ ऑल्सो, देयर इज सम अदर काइंड ऑफ सेट ऑफ ऑल्सो पॉसिबल इन द सीपीसी. अगर ऐसा नहीं होता तो वो अदरवाइज नहीं लिखते, तो उन्होंने अदरवाइज लिखा है. तो दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर 8 रूल 6 देयर मे बी सम अदर प्रोविजन ऑल्सो, या मे बी अदरवाइज ऑल्सो वेयर द सेट ऑफ इज पॉसिबल. सो दिस सब रूल इज गिविंग एन हिंट द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेट ऑफ अदरवाइज देन ऑर्डर 8 रूल 6, and that set off is also called the equitable set off. तो इसको आप लिख लीजिए, write down that the word otherwise in order 20 rule 19 sub rule 3 clearly suggest that there may be some other concept of set off apart from order 8 rule 6. It is here that the reference seems to be to the concept of equitable set off. ठीक, तो अदरवाइज लिखकर उन्होंने पॉसिबिलिटी बताया है कि और भी कुछ सेट ऑफ हो सकता है. तो सीपीसी में कहीं लिखा तो है नहीं सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 के अलावा. देन व्हाट इज दैट अदरवाइज? सो दैट विल बी इक्विटेबल सेट ऑफ, एंड दैट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश इक्विटी कोड्स. अब इसमें आप कुछ केसेस के नाम लिख लो. अब इसमें वन इज
Clark versus Ratna Velu, that is 1865, Privy Council. Then next you take down Bhupendra Narayan Singh Bahadur versus Bahadur Singh, that is 1952 Supreme Court. Then उसके बाद एक और लिख लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर। एग्जाम में इसको पूरा लिखना है, यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, वर्सेस करमचंद थापर एंड ब्रदर्स, करमचंद थापर एंड ब्रदर्स, दैट इज 2004 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें लिखिएगा पॉइंट, इसी केस से लिखवा रहा हूँ। अब इसमें जजमेंट डिलीवर्ड बाय आर.सी. लवाती जस्टिस, दिस लास्ट केस। उसमें लिखिएगा पॉइंट्स, राइट। The concept of equitable set-off, the concept of equitable set-off has been taken from the British equity courts, and the requirements are as follows. And the requirements are as follows. The first one, the original suit shall be a money suit. ये तो लीगल के जैसा ही हुआ, that the original suit shall be a money suit, and it will be ascertained or unascertained. Ascertained भी हो सकता है, unascertained भी हो सकता है। The original suit shall be money suit and it will be ascertained or unascertained. ये तो लीगल जैसा हो गया, लीगल सेट ऑफ की तरह। दूसरा पॉइंट, द सेट ऑफ क्लेम इज ऑल्सो फॉर मनी, द सेट ऑफ क्लेम इज ऑल्सो फॉर मनी बट इट कैन बी ascertained और ascertained। अब बताइए ये डिफरेंट है कि नहीं। अब लीगल सेट ऑफ में द सेट ऑफ क्लेम should be a ascertained amount, but here it can be ascertained or unascertained. For example, plaintiff ने क्लेम किया damages और defendant ने भी क्लेम कर लिया damages, तो equitable set off allowed हो सकता है, लेकिन legal set off allowed नहीं होगा, because the defendant का claim should be an always a ascertained amount in the legal set off, जबकि यहाँ पर the defendant claim could be ascertained or unascertained. अब the third one, the both the claims, मतलब the claim of the plaintiff and the defendant. Third point, both the claims should arise from the same transaction. Both the claims should arise from the same transaction. अब बताइए सेम है कि डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट है, बिकॉज सेम ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट। अब देखो लीगल सेट ऑफ में व्हाट यू हैव रेड, ए के पास बी के खिलाफ एक कॉज ऑफ एक्शन है और बी का ए के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन है, then also the legal set off can be done. But equitable में they are saying the transaction should be the same. For example, A ने B को कुछ काम करने को बोला, A ने B को कुछ काम करने को कहा और B ने negligently काम किया. There was a contract and B has done the act negligently and thereupon he causes some losses to A. अब A get the cause of action under the contract to file a suit against B because A has entered into a contract with B to do some work for A, but B does that negligently and causes losses to A. So A can file suit against B to claim damages, but at the same time B also have a cause of action in the same transaction. He has not paid him salary for 6 months. A ने B को 6 महीने से सैलरी नहीं दिया है, इज इट नॉट ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसी ट्रांजैक्शन में दो चीजें हैं, बी की नेग्लिजेंस की वजह से ए को नुकसान हुआ और बी को सैलरी नहीं मिली 6 मंथ से, तो कैन बी क्लेम अ सेट ऑफ द 6 मंथ सैलरी। अब हियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सेट ऑफ विल अप्लाई, sorry, the concept of equitable set off will apply because they are arise out of the same transaction. मतलब दोनों का ट्रांजैक्शन सेम हो तो उसी ट्रांजैक्शन में दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन मिला हो, देन दिस रूल विल अप्लाई। उसी ट्रांजैक्शन में दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन मिला हो, देन दिस रूल विल अप्लाई। जबकि द लीगल सेट ऑफ के लिए दैट इज नॉट मस्ट। फॉर द लीगल सेट ऑफ योर ट्रांजैक्शन कैन बी डिफरेंट। For example, I have a cause of action against you
and independent to this transaction you have a cause of action against me, so legal set off can be granted. जबकि equitable set off के लिए both the cause of action arises out of the same transaction, same relationship, same manner. ठीक, तो मेन एलिमेंट्स तो हो गए. अब एक दो पॉइंट्स और लिखो आप. फॉर लीगल सेट ऑफ, राइट, फॉर लीगल सेट ऑफ a party has the right to file the set of claim, but in equitable set of court has the discretion. But in equitable set of the court has the discretion. ठीक, क्योंकि इक्विटेबल सेट ऑफ इक्विटी की बेसिस पे है, कोर्ट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, जबकि लीगल सेट ऑफ में यू हैव द राइट टू क्लेम इट, एंड इफ यू आर हैविंग द कॉज ऑफ एक्शन देन यू विल गेट द रिलीफ. अब इसके बाद एक और लिखो लास्ट पॉइंट, राइट. In case of equitable set off, since it is based on equity, court fees will not be required, whereas in legal set off it is required. तो equitable set off में court fees required नहीं होगा, लेकिन legal set off में it will be required. So these are the broad differences. So that's it for this lecture. In next lecture we would start with counterclaim, that is order 8 rule 6a. Thank you.